Welcome back, friends. In the first part of the assessment video, we discussed about certain primary aspects of the assessment. We discussed about the self-assessment. We discussed about the provisional assessment. In this second part, we are going to discuss about the scrutiny of the return, the best judgment. There are two kinds of best judgments, and then we have a summary assessment. So these kind of assessments we're going to discuss. So let us move on to the first part, scrutiny of the returns, which is going to be very, very important. Friends, the scrutiny of returns is basically covered under section 61 read with rule 99 of the CGST Act. And let us see what does it say. It says that the proper officer may scrutinize the returns and related particulars furnished by the registered person to verify the correctness of the return. So friends, we already discussed in the previous part that a registered person and taxable person both are different. So here the word used are registered person. Another important thing that you need to understand is that ये जो scrutiny of returns है जिसको ASMT हम 10 कहते हैं, ये इतना ज़्यादा यूज होना शुरू हो गया है और हमारे को बहुत सारे अब ये इंस्टेंसेस नजर आते हैं हमारे क्लाइंट्स की तरफ से व्हेन वी आर रिसीविंग सो मेनी ऑफ दीज नोटिसेस फ्रॉम assessing officers. And believe me or not, many times we get surprised by the kind of assessment orders that they are passing, or not even assessment orders. ASMT 10 is being issued basically. So we are going to discuss the relevance of this because this is practically what we're facing now, and we have to understand the nitty-gritties of this section to properly apply your mind onto this. Friend, there's a little bit of anomaly in this section in the rule 99. Section 61 says that the proper officer may scrutinize the return and related particulars furnished by the arrested person. So I'm laying stress on this word furnished. Whereas the rule says that assessing officer shall form an opinion on the basis of the information available with reference to the information available with him. तो दोस्तों ये जो वर्ड है furnished by the registered person और the information available with him, इस दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है. अगर आप इस वर्ड का स्ट्रेस मैंने दिया उस पर अंडरस्टैंड करें, furnished by the registered person वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हम अवेलेबल करवाते हैं असेसिंग ऑफिसर को, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम के अंदर पूरी दुनिया इसके पास है. एनी इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल विद हिम, ही कैन यूज दैट information to verify the correctness of the return in the particulars filed in it. तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ. GSTR 2A हम फर्निश नहीं करते असेसिंग ऑफिसर को, लेकिन GSTR 2A इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम. आपको ये डिफरेंस तो समझ आ ही गया होगा कि मैं फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम में फर्क कहाँ पे जम रहा हूँ. दोस्तों, for all practical reasons, department will always try to find out the best possible options available with him, whether it is act or the rules. And frankly speaking, for all practical purposes, we need not dispute this with the assessing officer because he's got a lot of powers, other powers under the act, where he can still, use that information and use it against you. However, for the proper legal interpretation and in case of dispute where we have to refer to the legal jurisprudence of the section and the interplay of the section, the rules, we have to understand that there is a supremacy of the section as compared to the rule. A rule can prescribe a procedure within the framework of the section of the act. A rule can definitely create a convenience for the assessee, but a rule cannot read a new restriction into the section for the assessee. A rule cannot create a new condition. A rule cannot create a new obligation upon the assessee. So in case there is any problem, definitely there are interpretation issues in this, and definitely we can make use of it. So this was the first point that I wanted to point out over here. Now what does he do? अभी सेक्शन 61 और रूल 99 के अंदर इसने स्क्रूटनी की रिटर्न की,
on the basis of information available with him, because definitely he will try to use that available with him. What will he do? Then now he will inform the discrepancies to the registered person and he will seek explanation there. दोस्तों ये जो प्रोसेस है, ये एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिपेंसी इन्फॉर्म करना, उससे एक्सप्लेनेशन लेना, ये अपने आप में इतना बड़ा गैमेट है. द पावर्स ओवर देयर इन दिस section 61 Red with rule 99 are very wide. He can verify the correctness of the returns. The word uses returns. तो returns basically कहीं पर भी यूज हो सकती हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है. रिटर्न्स का हमारे को उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम रिटर्न्स को यूज कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या है. वैलिड रिटर्न और रिटर्न में फर्क है, जो हमने पहले देखा भी था. नो एक्शन इज सच एक्सप्लेनेशन इज फाउंड सेटिस्फैक्टरी. तो उसने कहा कि अगर तो असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फैक्शन है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई एक्शन नहीं होगा. और आपको पता है असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कराना कोई आसान काम तो है नहीं है, पर आपको सेटिस्फाई कराना होगा, तब कोई एक्शन नहीं है. और उसके बाद इन केस नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज और एक्सटेंडेड टाइम अलाउड. अगर आपने उसको 30 दिनों के अंदर अंदर सेटिस्फाई नहीं किया या फिर एक्सटेंडेड टाइम वो जो अलाउ करता है, या अगर आपने उसने जो डिस्क्रिपेंसीज पॉइंट आउट की, आपने वो एक्सेप्ट कर ली, यू हैव एक्सेप्टेड दोस डिस्क्रिपेंसीज, बट यू डू नॉट टेक एनी करेक्टिव मेजर in the return for the month in which the discrepancy is accepted. For example, the discrepancies pointed out to you in the month of March, and you do not take any action, corrective action on the discrepancies which are accepted by you in the return for the month of March, and he can ask you that you please file the return for the month of March and you have to show it to me and you have to prove it to me कि आपने वो रिटर्न्स में डिस्क्रिपेंसीज ठीक कर ली है. तो वो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. और अगर आपने वो करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो क्या होगा? तो यहाँ से सेक्शन 61 जो है, ये अपने आप में कोई एडजुडिकेशन का नहीं है, ये प्राइमरी प्रिपरेशन है. यहाँ से हमारे पास फर्दर एक्शंस जो है वो खुल जाते हैं. वो कौन से एक्शंस खुल जाते हैं? सेक्शन 65 का डिपार्टमेंटल ऑडिट, सेक्शन 66 का स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 67 का इंस्पेक्शन सर्च और सीजर वाला सेक्शन, या फिर 73 और 73(4) डिमांड एंड रिकवरी विदाउट फ्रॉड एंड विद फ्रॉड. तो क्या हुआ कि अगर तो आपने उसकी बात मान ली और या आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया, फिर तो कोई एक्शन नहीं है. अगर आपने उसकी बात नहीं मानी या उसके कहने के अनुसार आपने वो करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो उसके पास बहुत वाइड पावर्स का ओपन हो जाता है एक गैमेट. तो दोस्तों, अब हमारे को ये देखने को मिलता है कि किस किस तरीके की चीजें हैं जो एक असेसिंग ऑफिसर उसको यूज कर सकता है. फॉर एग्जांपल, ही कैन कंपेयर योर GSTR 1 with GSTR 3B. He can compare your GSTR 2A with your 3B, and he can even compare your e-way bills with your GSTR 1, because that is the information furnished definitely on the portal. On the portal means to the assessing officer. इसके अलावा आप देखिए कि कई बारी आपके केस के अंदर वो ये भी कर सकता है कि वो ई-वे बिल को आपके 3B के साथ कंपेयर कर सकता है. अब कई बार क्या होता है कि ये असेसमेंट SMT 10 जब हमारे पास आता है तो हमारे को बड़ी absurd सी comparisons आती हैं. Quantification of the tax also. I'll give you one example. In one of the cases, the e-way bill portal के अंदर जो डाटा था, it was compared with the GSTR 3B. Now you see that rule 138 जो हमारा e-way bill का है, उसके अंदर movement of goods की बात है, सप्लाई की बात नहीं है. वहाँ पे there are many transactions which are not even supply, वो डिलीवरी चलान्स के ऊपर चलती हैं. वो भी आपको ई-वे बिल क्रिएट करके पोर्टल पे चलानी पड़ती है. और वो GSTR 3B के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो वो 1-to-1 कंपैरिजन नहीं है. आप ये जरूर कह सकते हो कि आपने ई-वे बिल पोर्टल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया एंड यू वर एबल टू डिटरमाइन, बिकॉज वहाँ पे डाटा आपका अवेलेबल होता है कि व्हाट आर द डिलीवरी चलान एंड व्हाट आर द इनवॉइसेस. अगर वहाँ से आपकी इनवॉइसेस की डिटेल निकल के आते हैं ई-वे बिल के और 3B से कंपेयर करते हो, तो एक रैशनल लॉजिकल है. In one of the cases of my client, what happened was that e-way bill का डाटा, consolidated data was compared with GSTR 3B, और जितना डिफरेंस था, डिफरेंस के ऊपर सीधा टैक्स रेट लगा के कोई 7 या 8 करोड़ रुपए की डिमांड क्रिएट कर दी. और इस तरीके के ASMT 10 बहुत सारे इशू होते हैं.
I'll give you another example in one of the other cases how the ASMT 10 या scrutiny of returns to section 61 में किस तरीके से यूज हो रहा है. I'll give you an example. एक हमारा क्लाइंट था, एक ऐसा केस था जिसके अंदर जो GSTR 2A जो पोर्टल पे शो कर रहा था उसमें हमारी जो इनवर्ट सप्लाई थी दैट वाज मच मोर हायर देन द GSTR 2A की जो या इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम 3B के अंदर क्लेम कर रहे थे. फॉर एग्जांपल इट वाज अ डिफरेंस ऑफ 50 lakhs or crores of rupees, 1 or 2 crore rupees. For multiple reasons can be, जब आपकी इनवर्ट सप्लाईज वहां पर इफेक्ट कर रही है पर आप उसको इन्वर्ट नहीं लेना चाहते हो, then sometimes it does happen in the case of construction of a property, जहाँ पर आपने वो इनपुट आपको बस आई जा रहा है but you don't want to claim it. So there can be a number of reasons. Blocked credit है, कुछ भी आपके पास, या गलती से भी आपका GST नंबर डल के आपके 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होता है. So there can be a number of reasons. So there was a difference, and difference was not on the lower side in GST 2A. It was not that we were taking excess credit in 3B, but it was in excess credit available in 2A, lesser credit available. So the notice under ASMT 10 came that since your inward supplies as per GST 2A is more than that claimed under GST 3B by around about 1 crore rupees or so, example आप ले लीजिए. So it basically proves that there is a clandestine removal of goods from your premises. To that extent, आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जो आप अपनी रिटर्नों में नहीं दिखा रहे, बिकॉज आपके पास परचेज तो आ रही है 2A के अंदर लेकिन आप रिटर्नों में नहीं दिखा रहे. तो उसके अंदर आपका अप्रोप्रिएट जीपी रेशियो लगा के जितना आपके पुरानी बैलेंस शीट दिखा रहे हैं तो हम आपकी आउटवर्ड सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स रेट लगाकर हम आपका ये टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और इतने का टैक्स निकला और इतने का इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पैसा जमा. Now look at this. Don't you think this is excessive use of Section 61 read with Rule 99, scrutiny of returns? Definitely it is. So हमारे को ये देखना होगा कि जो पावर्स और जो एरिया जो इसमें दिया गया है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वाइड है, बट अनरिस्ट्रिक्टिव नहीं है. It cannot be unreasonable. We have to find out कि इसके अंदर हमारे पास अगर स्क्रूटनी भी करनी है तो किस एरिया के अंदर करनी है. आप देखिए कि प्रॉपर ऑफिसर टू इशू नोटिस इन SMT 10 and seek explanation within 30 days and quantifying the amount of tax, interest and any other amount payable. The registered person shall either pay the specified amount or offer explanation in form GST SMT 11 to the proper officer. So you have only two options. Either you explain that this is the difference and how the difference is definitely, and otherwise you have to make the payment. So you have only two options. In case the explanation is acceptable to the officer, the registered person shall be informed in ASMT 12 कि भैया आपकी सेटिस्फेक्शन आपने हमारी करवा दी और आपने जो हमारे ऊपर सेटिस्फेक्शन जो है अपर एक्सप्लेनेशन की वो सही थी. और आप ये समझ सकते हैं कि जो ये एक्सप्लेनेशन है और सेटिस्फेक्शन है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब. इट्स अ डिफिकल्ट जॉब कि आप असेसिंग ऑफिसर की भी satisfaction आप करा पाए, but definitely if you are able to get it done, and there are many ways and many instances also when legally and factually and technically also you can get him, make him satisfied. Now let us come on to the questions. Definitely, can GST 2A be used for the purpose of section 61? I just explained you the difference of the words that are being used under the section and the rules. For practical purposes, yes. Very strictly speaking, no. So I believe that you should, in normal practical circumstances, you should not object usage of GST 2A. However, if there is a dispute, definitely some elbow room you have to contest. What is the next step if the discrepancy is not accepted? Definitely, if the discrepancy is not accepted, the doors of other action, other proceedings open up. You have departmental audit, special audit, inspection, search, seizure, demand and recovery. All this section they open up. On what basis scrutiny of returns can be taken up? Now, see, scrutiny of returns can be taken up on many bases. Like few states, like Kerala, basically they issued even the circular that how the section 61 is to be used, what kind of information you have to use, and how the notices are to be issued. But the problem is that most of the states, this kind of direction is not there. See, I will tell you that
This is a pre-adjudication process, and nothing much is defined for the Section 61, and the powers over here are very, very wide. And definitely unrestrictively it is being used, this section is being used. And similar section used to be there in the earlier center excise or in the service tax regime also. And we had circulars, guiding circulars, which were available under the center excise or under the service tax. So those circulars used to create a periphery within which the section is to be used. But ऐसा कोई हमारे पास सर्कुलर नहीं है. अब लेटेस्ट सर्कुलर सर्विस टैक्स की मुझे याद है 30/6/2015 का एक सर्कुलर था जहां पर ऐसे गाइडलाइंस हमारे को इश्यू की थी एक सर्कुलर के अंदर. बट ऐसा कुछ सर्कुलर हमारे पास जीएसटी लॉ में नहीं दिया है. एंड आई थिंक दिस इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड दैट a framework, a periphery, a boundary has to be set for the assessing officer also, and the direction has to be given to the assessing officer how, when, and in what form this power has to be used, this section has to be used against the assessee. What is the maximum time available to respond to ASMT? Now, the word over here is not exceeding 30 days, and that makes the game unreasonable. So, it is not exceeding 30 days, we have to respond back. And sometimes the assessing officer doesn't even give you 7 days time to respond back. एक और important चीज है, यहाँ पर जो section 61 के अंदर बात की गई है, word use किया है discrepancy in the section. हालांकि रूल के अंदर क्या है, verifying the correctness for the section says that discrepancy जो है उसको remove करना है. So what is a discrepancy? Discrepancy is a kind of an inconsistency. Inconsistency है, inaccuracy है, which is a very important requirement to invoke a section. अगर हमारे पास inconsistency नहीं है, inaccuracy नहीं है, and the spirit of this section is that he has to discover this discrepancy from within the returns available with him, right? Either furnished or available with him. He cannot make roving inquiries into the market and then fetch some information from outside and then say that this is the discrepancy which I found out. यानी कि कोई थर्ड पार्टी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके आपको ये नहीं कह सकता कि यार उस बंदे ने आपकी कंप्लेंट की है, सेक्शन 61 के अंदर स्क्रूटनी में आपकी रिटर्न कर दूंगा, उस बंदे ने मेरे को चिट्ठी लिख के दी है, कंप्लेंट आपके खिलाफ लिख के दी है कि भैया आपकी रिटर्न के अंदर कपला हुआ था, आपने इतने करोड़ रुपए का कपला किया. सो दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस. दिस इज अ प्राइमा फेसी establishment of an opinion whether there is some problem or not. In case there is a problem, so let us seek the explanation. If there is no problem, आप उसको explain करिए and the matter will get resolved. So I hope I am able to make you understand कि इसका framework क्या है. आपको जो कुछ भी इसके अंदर discrepancy वगैरह ढूंढनी है from within the return ही ढूंढनी है, चाहे वो furnished हो, चाहे वो available हो, documents जो normally available होते हैं तो assessing officer उसी के अंदर से ढूंढना है. What is the time limit for issuing notice for scrutiny of the returns? There is no time limit prescribed. However, once annual return for related period is filed, scrutiny of return under section 61 loses its relevance. See, returns, documents सारे जो है वो आपके पास कोई भी हो सकते हैं. आपके RAT1 हो सकता है, जैसे आपकी नई रिटर्न आ रही है और 297 के अंदर रिटर्न जो है वो किसी सेक्शन से लिंक करके नहीं बताई गई आपको. उन्होंने कहा है कि any return which is required to be filed as per the provisions of the law, so that is a return. Valid return के अंदर section 39 का रेफरेंस दिया गया है. So यहाँ पे वर्ड रिटर्न किया है, वैलिड रिटर्न की बात नहीं की है. तो हमारे को लगता है कि GSTR 3 भी आपका है, आपका 2A है, GSTR 1 है, आपके बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसको यूज किया जा सकता है. बट ये अब इसको कितनी देर तक यूज किया जा सकता है, ये भी एक लिमिट होनी चाहिए. टेक्निकली स्पीकिंग कोई ऐसी लिमिट्स यहाँ पे दी नहीं गई है सेक्शन के अंदर, लेकिन ये माना गया है कि जब एक एनुअल रिटर्न आपने दे दी और आपने सारा साल का डाटा कंपाइल अप करके दे दिया, तो उसकी रेलेवेंस जो पीछे आपने किया जीएसटी 1 में 3B में, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी अंदर सेल्फ असेसमेंट टू रेक्टिफाई दीज मिस्टेक्स इन द सब्सिक्वेंट रिटर्न्स, एंड व्हाटएवर द करेक्शंस और मॉडिफिकेशन और एक्सेप्टेबिलिटी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपके एनुअल रिटर्न में आ जाती है DRC 03 देके या फिर एडजस्टमेंट्स करके. So once annual return you have filed, so there is no relevance of picking up and scrutinizing the returns which are the basis of filing of annual return. So annual returns say we have to move forward. This is something which is ethics of the law. It has to be reasonable. Undue haste is against the principle of fairness, and such a conduct of the assessing officer deserves to be deprecated.
Adequate and proper opportunity of hearing should be provided to ensure fair hearing and fair deal to the assessee. This is the case law of Ramaswaram Paper Mills Private Limited, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2009 का केस है और पदम ट्रेडर्स का ये केस है। तो वहां से मैंने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है कि देखिए 4 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में आप रिप्लाई दे दीजिए, तो ये बड़ा absurd है। देयर हैज टू बी सम रीजनेबलनेस, बट आई बिलीव दैट यू नो व्हेन द सुपरिटेंडेंट सामने बैठा होता है तो वहां पर समटाइम्स दे बाय योर आर्गुमेंट और रिक्वेस्ट, समटाइम्स दे डोंट बाय। सो टू लेवल बेस्ट यू शुड ट्राई दैट पीसफुली सारा मैटर खत्म हो जाए। पर अगर आपको फाइट करना है तो यू शुड ऑलवेज फाइट फॉर योर नेचुरल जस्टिस एंड फॉर द रीजनेबलनेस। Now we come on to the next section, section 62, assessment of non-filers of the return. So now there are two sections. These two sections basically now would be of the best judgment assessment. So what is happening here is that there is no information which is coming here from the assessee, and in this case the only option left with the officer is to gather the information. And now you will feel the difference, that what was the difference between the language which was used under section 61 and the language which is used in 62, and you will be able to appreciate the difference over here. तो अब देखिए ये लैंग्वेज क्या कहता है, notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 और section 74. इसका रेलेवेंस क्यों है, क्यों नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज से शुरू होता है, इसका मैं रेलेवेंस भी आपको समझाऊंगा। Where a registered person, taxable person, fails to furnish the return required under section 39, ये आपकी मंथली रिटर्न है, और सेक्शन 45 ये आपकी फाइनल रिटर्न है, इवन आफ्टर सर्विस ऑफ ए नोटिस अंडर सेक्शन 46। ये सेक्शन 46 के अंदर आपको एक नोटिस सर्व करने का लिखा गया कि 15 दिन के अंदर नोटिस आप सर्व करेंगे अगर आपने 39, 44, 45 के अंदर आपने रिटर्न भी फाइल की है। द प्रॉपर ऑफिसर मे proceed to assess the tax liability of the said person to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered and issue an assessment order. अब देखो यहाँ पर जो मटेरियल की बात कर रहा है, all relevant material which is available, यहाँ पर furnished नहीं है जो सेक्शन में लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक्शन ही कह रहा है available, or which he is gathered. So now he can gather the information from outside also. जो restriction हमारे पास थी. So gathering of information is not there under section 61. The gathering information is there under section 62, and section 62 says in the section itself material which is available, whereas section 61 says material which is furnished, although the rule goes on to expand the scope by making use of the word available. So this is the difference which you'll understand, and rightfully so in section 62, because यहाँ पर assessing officer के पास कुछ आ ही नहीं रहा है, वो नॉन फाइलर्स हैं, उसने एक रजिस्ट्रेशन ले ली, उसके बाद वो कभी उसका शक्ल ही नहीं दिखाई, ना पोर्टल को ना असेसिंग ऑफिसर को, तो उसके पास क्या चारा है, उसके पास कोई और चारा नहीं है। ही हैज टू व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जो पोर्टल के थ्रू उसने 1 या 2 रिटर्न जो फाइल किए होंगे, प्लस ही हैज टू गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, उसने ये किया, वो किया, जो भी किया। अब यहाँ पे कहता है कि वेयर द टैक्सेबल पर्सन फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days or the service of assessment order under subsection 1, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn by liability for payment of interest under section 51 or payment of late fees under section 47 shall continue. अब यहाँ पे कहता है कि ठीक है भैया, हमने आपकी असेसमेंट कर दी, पर आपने जैसे हमारा सेक्शन 73 में, अब शायद आगे पढ़ेंगे, पर जिन लोगों ने वो पढ़ा हुआ वहां पे भी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है यार 30 दिन का टाइम है, आपने कंप्लाई कर लिया तो चलो सारा डंडा खत्म। यहाँ पर भी ये सबसे 2 के अंदर कहता है कि आपने असेसमेंट ऑर्डर ले लिया हमारे से, लेकिन आप थोड़े से कोऑपरेटिव निकले, आपने हमारा कोऑपरेट किया, जो हमने असेसमेंट ऑर्डर में लिखा था आपने अपनी लायबिलिटी पे कर दी, तो ये ऑर्डर जो होगा इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन एंड नो कोर्स ऑफ एक्शन विल बी टेकन इन द ऑफिस। नाउ the same non-obstinate clause comes up over here also, notwithstanding anything to the contrary contained in section 73 or 74, where a taxable person fails to obtain registration even though liable to do so. यहाँ पर क्या है, वहां पे registration है, रिटर्न्स नहीं फाइल करना, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं ले रहा, चाहे वो लेवल है। तो पहले तो असेसिंग ऑफिसर को ये अपने रिकॉर्ड पर डिटरमाइन करना पड़ेगा, विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन, कि ऑन व्हाट बेसिस ही हैज रीच्ड अ कंक्लूजन दैट ही इज लायबल टू have the registration. So this is very very important.
By using these words, it has the responsibility which has been casted upon the assessing officer under section 63 that he has to ensure on the file, on the document, on the record that this person is liable to get the registration, which can be basis on the basis of the information that is available or is gathering from different sources. तो ये सारी चीजें उसको अरेंज करनी पड़ेगी. Or whose registration has been cancelled under subsection 2 of section 29 but who was liable to pay tax, the proper officer may proceed to assess the tax liability of such taxable person to the best of assessment. अब आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने 6 रिटर्न फाइल नहीं की, 3 आपने क्वार्टर फाइल नहीं किया, आपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है आपने नहीं फाइल किया और आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई और आप अब कुछ नहीं कर सकते, आपको मैटर आपका खत्म हो गया, आपको फाइनल रिटर्न फाइल करनी है, यू आर आउट ऑफ द सिस्टम. बट इट डज नॉट मीन कि भैया चलो जो हमने किया, खाया पिया, गिलास थोड़ा बाहर ने काम खत्म किया और पैसे को टैक्स के देने नहीं है, ऐसा नहीं है. He can still invoke this section 63 to basically make an assessment that जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी पर फिर भी क्या आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी तो वो कितनी बनती है, उसकी बेस्ट जजमेंट वो करेगा. बिकॉज अगर आप रिटर्न्स अपनी फाइल नहीं कर रहे हो या आपने रजिस्ट्रेशन आपकी कैंसिल हो गई है और आपने अब आप अनरजिस्टर्ड हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी वो जज नहीं कर सकता. बिफोर the cancellation he can always assess कि what was the transaction on which you were liable to pay the taxes. अब यहाँ पर जो important word है and issue an assessment order within period of 5 years from the due date for the filing of annual return for the year to which the tax not paid relates. Now you will be able to understand इस section के अंदर ही एक इन्होंने limitation period निकाल के यहाँ पे डाल दिया section 63 के अंदर कि 5 साल from the date of the filing of the annual return to which this tax not paid relates, उसकी annual return की ड्यू डेट उससे 5 साल के पीरियड तक ये इसका असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है. और यही कारण है कि इन्होंने इसको नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज ऊपर बनाया कि 73 और 74 को पीछे करते हुए हम 63 के अंदर अपना एक लिमिटेशन पीरियड जो है कोडिफाई करेंगे. बिकॉज 73 जो है हमारे को 3 साल का टाइम देता है, 74 हमारे को 5 साल का टाइम देता है. और 73 74 को साइड पे करने का एक कारण और भी है, वो ये है कि 73 74 के अंदर झगड़ा आपका फ्रॉड और नॉन फ्रॉड केस भी है और आपको ये प्रूव करना पड़ता है कि आप फ्रॉड वाले केस में पढ़ते हो तब 74 में जाते हो. तो अब डिपार्टमेंट डज नॉट वांट टू गेट इनटू दिस, इट्स अ फ्रॉड और नॉन फ्रॉड, वो स्ट्रेट अवे अपने लिए 5 साल का लिमिटेशन पीरियड रखना चाहता है. सो दिस इज द रीजन दैट दिस नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज इज आल्सो देयर. Right, that no such assessment order shall be passed without the reasonable opportunity. ये तो definitely एक statute के अंदर incorporate होना बहुत जरूरी है. Now let us move on to section 64, summary assessment and special cases. तो मैं आपको ये बताऊंगा कि summary assessment शुरू करने से पहले ये दो section जो हमने पीछे पढ़े थे 62 और 63, ये best judgment assessment थे. अब ये best judgment assessment क्या है? ये एक estimate of the assessing officer है. और एक जो एस्टिमेट होता है असेसिंग ऑफिसर का, वो किसी न किसी बेस पे होना चाहिए. देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ रघुबर मंडल इन व्हिच इट वाज स्टेटेड दैट देयर आर मेनी जजमेंट्स. सुप्रीम कोर्ट के आप जजमेंट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के ऊपर तो पूरा गैमेट हमारा इनकम टैक्स का भरा हुआ है, आप जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्रक्स निकल के आता है वो मैं आपको बताता हूँ. ये है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हैज टू बी ऑन अ रैशनल एस्टिमेट बेसिस बट इट कैन नॉट बी ऑन सरमाइसेस. It cannot be so haywire that there is no rationality into the formation of the best judgment assessment, right? और उसका कुछ बेस होना चाहिए. But at the same time, it should not be so accurate because ultimately it is an estimate only. It is a judgment only. There can be certain plus, certain minuses into the judgment, but broadly it should have some rationality into the formation. So इतना ज़्यादा वेग और वाइड नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ का हमारे को असेसिंग ऑफिसर को भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है सेक्शन 62 और 63 के अंदर. लेट अस कम टू समरी असेसमेंट इन स्पेशल केसेस 64 के अंदर. नाउ व्हाट डज दिस सेक्शन सेज? द प्रॉपर ऑफिसर मे ऑन एन एविडेंस शोइंग अ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन कमिंग टू हिज नोटिस with the previous permission of additional or joint commissioner proceed to assess the tax liability of such person to protect the interest of the revenue and issue an assessment order if he has sufficient grounds to believe that any delay in doing so will adversely affect the interest of the revenue. अब इसमें क्या है?
मान लीजिए उसको एक खुफिया सूचना मिलती है कि भैया ये फलाना गली के अंदर एक ऐसा गोडाउन बना हुआ है जो रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसके अंदर सामान रखा हुआ है, और वो सामान जो है वो आज रात को निकल जाएगा। सामान मान लीजिए वहां पे 10 पेटी मोबाइल फोन महंगे वाले पड़े हुए और वो वहां से निकल जाएंगे, और उसको एक खुफिया सूचना मिल गई। अब वो इसको असेसमेंट करके उसको फर्दर काम करके इसको डिले नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अभी इसकी असेस करे टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि एक बारी माल इधर का उधर हो गया, कौन सा बंदा था, किसका गोडाउन था क्या नहीं था, हम उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। तो इमीडिएटली वो परमिशन लेता है विद फ्रॉम द एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर एंड वांट टू प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी। सो दिस इज द सेक्शन व्हिच बेसिकली गिव्स दैट आर्मरी टू द proper officer, provided that where the taxable person to whom the liability pertains is not ascertainable. So now there might be circumstances when जिसकी liability बनती है, तो owner of the goods है, वो ascertain नहीं हो पा रहा। वहाँ पे उसका कोई विश्वास वाला गोडाउन कीपर है, एक रिक्शा वाला या कोई भी लोग हैं, और उसकी कस्टडी में माल पड़ा हुआ है और वो उसको कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि जी मेरे को नहीं पता जी, मेरे को तो माल कहा गया यहाँ पर रखने के लिए और यहाँ रख के मैं जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि उस केस के अंदर जो पर्सन इंचार्ज होगा उस गुड्स का, उसी को डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन मानकर उसकी लायबिलिटी असेस कर दी जाएगी। और हमारे को पता है डिमांड और रिकवरी के अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोविजंस हैं, 73, 74 में जाते हैं कि हम मतलब उसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। हमारे पास पूरा एक प्रोसेस है हमारे पास। और उसके बाद ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर पास ऑन सबसेक्शन 1 और ऑन हिज ओन मोशन, if the additional joint commissioner considers that such order is erroneous, he may withdraw such order and follow procedure laid down in section 70 and 74. अगर उसको लगता है कि भैया ये ऑर्डर गलत है या फिर जो ओनर ऑफ द गुड्स वो सामने आ गया, उसने कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, ये मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, ये सारा कुछ हिसाब किताब है, पेपर में डॉक्यूमेंट सारे हैं, या उसको असिस्टेंट कमिश्नर को या जॉइंट कमिश्नर को खुद ही लगता है, एडिशनल कमिश्नर को, कि यार ये मुझसे गलती होगी, मेरे को इतना एक्सेसिव स्टेप नहीं उठाना चाहिए था कि मैं वेट भी ना करूं उसके रिटर्न फाइल करने की या कोई डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न एग्जॉस्ट होने की, और मैंने एक्शन ले लिया, तो वो सुओ मोटो भी उसको विड्रॉ कर सकता है। बट डेफिनेटली अगर इसके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कुछ भी इसके अंदर गलत है, तो ही मे फॉलो द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 73 और 74 इन दैट केस, और डेफिनेटली डिमांड और रिकवरी के अंदर आगे परस्यू करेगा। सो दिस इज व्हाट बेसिकली सेक्शन 64 इज। Concluding about this assessment, I think we have had a right and a very practical way के अंदर हमारी डिस्कशन हुआ है। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर दो और इश्यूज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक सेक्शन 160 है जो हमारे को साथ साथ इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि पुराने जो हमारे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं इन फिस्कल लॉज, हमारे इनकम टैक्स जैसे या हमारा सेंट्रल एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, उन चीजों से सीखते हुए गवर्नमेंट has started creating the fort for itself कि जहाँ पर ऑफिसर से हमारी गलती हो जाए तो हमारे को रेस्क्यू मिल जाए। एसएससी गलती करता है तो ऑफिसर ठोकेगा ही, लेकिन कहीं ऑफिसर अगर गलती करता है और फ्रीक्वेंटली ऐसी गलती होती है तो उसके लिए कोई ना कोई हम इसका जरिया ढूंढ लें उसको बचाए करने। तो क्या कहता है सेक्शन 160 सबसेक्शन 1? वो कहता है कि नो असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एडजुडिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, अपील, रेक्टिफिकेशन नोटिस, समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। तो इसके अंदर असेसमेंट और रीअसेसमेंट का वर्ड यूज करता है। हालांकि रीअसेसमेंट इज नॉट अ कांसेप्ट इन द जीएसटी लॉ, बट दिस इज हाउ इट इज यूजिंग टाइम एंड अगेन। और purported to have been done, accepted, made, issued, initiated in pursuance। तो कोई भी अगर एक्टिविटी उसने की है वो इनवैलिड सिर्फ इसी बात से नहीं हो जाएगी कि mere reason of some mistake, defect या omission उसके अंदर चलेगी। If those are in substance and effect in conformity with or according to the intents and purposes of the requirements of the act or any existing law। For example, उसमें ऊपर तो असेसिंग ऑफिसर का नाम, अपना क्लाइंट का नाम लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, नीचे रेफर करते हुए वो कॉपी पेस्ट किया ऑर्डर और वो पुराने किसी और क्लाइंट का नाम लिखा हुआ रह गया उसके अंदर। तो क्रक्स तो उसका सही है कि यार इसी ऑर्डर, ये जो नोटिस है और ये जो ऑर्डर है ये इस एसएससी का ही है, बिकॉज स्टार्ट और रेफरेंस आर उसी था, एक जगह पे गलती हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर नल एंड वॉइड। तो ये कई बार क्या है कि हमने नोटिफिकेशन नंबर गलत डाल दिया या नोटिफिकेशन नंबर के साथ उसकी डेट गलत डाल दी असेसिंग ऑफिसर ने। तो इन स्पिरिट जो उसका असेसिंग ऑफिसर उसका कहना है वो बिल्कुल सारा डिविएट नहीं हो जाएगा। तो ये एक प्रोटेक्शन असेसिंग ऑफिसर को दे दी उसने कि भैया ये छोटी मोटी मिस्टेक्स को आप भी बॉदर मत करना,
ये प्रोसीजर लैप्सेस असेसिंग ऑफिसर से भी हो सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर से भी हो सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर भी हमारे पास एक एस्टेब्लिश्ड, अब उन्होंने अपना फोर्ट बना लिया है, अपना पेरिफेरी बना लिया है कि भैया अगर कोई भी डिफेक्ट है इन द नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन, वो डिफेक्ट रिमूव समझा जाएगा इफ दैट has been acted upon by the person to whom it has been issued or where the service has not been called in question. अगर हमने उसको पहले ही इंस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया और हमने उसके ऊपर एक्ट अपॉन कर लिया, तो it will be deemed that all those defects have been cured and those causes cannot be taken up further into the proceedings ever after. So ये दो चीजें हैं जो असेसमेंट के साथ ही आपको समझनी बहुत जरूरी थी, तो मैंने आपको वो समझाई और आपको एक्सप्लेन कर दी है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि असेसमेंट हमारे पास ज़्यादा नहीं है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल इश्यूज थे मैंने वो भी आपको समझा दिए हैं। कुछ एक फॉर्म्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। फॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे GST AMT 13। Now it says that order for assessment under section 62(1) and summary order in DRC 07। तो जो ऑर्डर है उसका जो अपलोडिंग करने वाला जो फॉर्म है वो DRC 07 है। DRC 07 से आपका लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर अमाउंट चढ़ जाता है। तो आप ये देखिए कि DRC 07 जा रहा है और नोटिस का जो है DRC 01 है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। ASMT 14 है 63 के लिए है, ASMT 15 है बेस्ट जजमेंट ऑर्डर अंडर 63 आफ्टर लाइक 15 डेज, और एज टू रिप्लाई एज पर ASMT 14, तो उसको रिप्लाई करने के लिए फॉर्म जो दिया गया वो ASMT 15 है। ASMT 16 है हमारे पास समरी असेसमेंट 64(1) के अंदर, और ये चढ़ा दी जाएगी DRC 07 के साथ हमारे लायबिलिटी रजिस्टर के अंदर। ASMT 17 है एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फॉर समरी असेसमेंट ऑर्डर एज पर 64(2). ASMT 18 है ऑर्डर फॉर विड्रॉल ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 64(2). So friends, this was all about the assessment proceedings. I've discussed to the extent of my little knowledge whatever I could discuss with you. I am hopeful that you are enjoying these short, crisp videos and sessions on different aspects of GST. एक मेरी आपसे humble request है that ये चैनल के अंदर हम बार बार relevant topics को upload करते रहेंगे। प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिए, सो दैट यू कीप ऑन ट्रैक ऑफ व्हाट एवर वी आर पोस्टिंग ओवर हियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको जरूर एक वीडियो एडिट करने से पहले जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। एक और बात आपको कहना चाहूँगा, GST प्रोसेस के अंदर, असेसमेंट के अंदर टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए अगर आपको इस पूरी वीडियोस के अंदर कोई भी क्वेरीज नजर आती हैं, कोई भी क्वेश्चन नजर आते हैं, तो हमारा जो नीचे डिटेल है ये YouTube वीडियो के नीचे, उसके अंदर हमने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है which is queries@poc-ca.com। आप अपनी ईमेल वहां पे लिख सकते हैं, अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। We will try to address those queries either directly or taking up certain important queries of the general cause and making certain videos जिसके अंदर हम generally हम उस queries को resolve कर सकें। तो मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, लाइक करेंगे। मिलता हूं दोबारा आपके साथ एक और नए टॉपिक के ऊपर, नए एक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।